With the court's permission, may I proceed with my argument? Proceed. Thank you so much. Sir, the present case arises out of incident dated 11 November 2024 at about 3:45 p.m. wherein the accused Manoj, brother of the complainant Simran, came to her house near the middle school in Nagalwadi, district Barbani, and demanded money. On her refusal, the accused abused her using filthy language concerning her mother and sisters, and then attacked her with a razor blade, causing bleeding injuries to her right hand. The accused also threatened to kill her. Simran's mother Shantabai and neighbor Kiran intervened in the incident. Immediately after the incident, Simran lodged a complaint at PS Nagalwadi around 4 p.m. The first information report was registered under section 79, 115, subsection 2 and 351 of BNS by ASI Arvind, and investigation was taken up. During the investigation, Simran was sent for medical examination and the doctor found an incised wound of 0.3 into 0.5 inch on her right hand, along with multiple superficial incised wounds on her left forearm, consistent with injuries caused by a sharp-edged object. The MLC report, which is EXP3, confirms this. The razor blade used in the assault was seized from Manoj, and the forensic examination confirmed the presence of human blood on it. Statements of Simran were recorded under section 180 of BNSS, and thereafter charge sheet was filed. Sir, during trial, her mother Shantabai PW2 supported the incident by deposing that she saw Simran bleeding and Manoj fleeing the scene. Although neighbor Kiran turned hostile, the ocular testimony of the injured, medical report and corroborative evidence from the investigating officer Arvind leave no doubt regarding the occurrence of the crime and the role of the accused. So the doctor's testimony confirmed that the injuries were not self-inflicted. So the accused Manoj in his 232 BNSS statement denied the allegations and took the plea of false implication due to a known dispute, but he produced no evidence or witness to support this claim. The prosecution submits that the case is proved beyond reasonable doubt through the consistent and trustworthy testimony of the injured witnesses. Sir, the first main point which I had mentioned in page number 6, which is injured witness testimony Simran PW1. Sir, Simran, the complainant and injured eyewitnesses, has clearly deposed that on 14 November 2024 at 3:45 p.m. her brother Manoj came to her house demanding money, abused her using filthy language, and attacked her with a razor blade, causing bleeding injuries. She identified her signature on FIR EXP1 and sitemap EXP2. Sir, I also had mentioned case laws regarding it. The first case law, General Singh vs. State of Punjab 2009. In this case, the court clearly held that the deposition of an injured witness is occurred a special status in law. The fact that the witness sustained injuries is proof of his presence at the place of occurrence and lends credibility to his testimony. Sir, in the second case law, State of UP vs. Naresh and others 2011, the court clearly held that the evidence of an injured witness cannot be discarded lightly. So the second major point which I had highlighted here is prompt FIR, no motive for false implication. Sir, the FIR was lodged by Simran within minutes of the incident at 4 p.m., indicating absence of time for manipulating or concoction. Simran's explanation in cross-examination shows she has no motive to falsely implicate her brother solely for a loan rupees 10,000 which she freely admitted to taking. Sir, in the case of Raghubir Singh vs. State of Haryana 1980, prompt lodging of FIR is a vital factor which goes in a favor of the prosecution. Sir, in the case of Kishan Singh vs. State of Rajasthan 1975, in this case the court clearly held that
A mere relationship or monetary dispute cannot be a ground to discard otherwise credible testimony. So the third point, which is very important, which is medical evidence, which is clear, corroborative and trustworthy. Doctor found incised wound of 3 into 5 inch on right hand, consistent with Simran's version, multiple superficial cuts on left forearm. So doctor opined injuries were caused by sharp edged weapon and not self-inflicted, ruling out the defense theory. Sir, in the case of Solanki, Chimanbhai, Okabhai versus State of Gujarat, 1983, in this case the court clearly held that medical evidence, though corroborative, plays an important role in confirming the eyewitness account. Sir, in the case of State of MP versus Ramesh, All India Report 2011, minor discrepancies do not affect the credibility of otherwise trustworthy medical and ocular testimony. So the fourth point, which is I had mentioned here, is recovery of razor blade with human blood. So the razor blade was seized from Manoj and human blood was found on it in chemical analysis. This forms a forensic link between the accused and the injuries caused. Sir, in the case of State of Rajasthan versus Arjun Singh 2011, the court clearly held that recovery of the weapon used in crime with traces of human blood is a vital link connecting the accused with the offense. So the fifth point, which I had highlighted here, is supportive testimony of mother. Shantabai, mother of the complainant, heard her daughter's cries, came out, saw Simran bleeding and saw Manoj fleeing the spot. She corroborates the immediate aftermath of the assault. Sir, in the case of Khoob Singh versus State of MP 1964, the court held that close relatives and natural witnesses are not to be disbelieved solely on account of relationship. So the sixth point, which is defense version, hostile witness. So never Kiran turned hostile but does not affect the prosecution case as the injured witness and medical officer provide a complete chain of events. Sir, in page number 12, I had mentioned my prayer. The prosecution has established motive, which is demand of money, incident through injured and corroborative witnesses, injury proved medically, weapon recovery, blood-stained razor blade, and criminal intimidation and abuse. Thus, all ingredients of section 79, 115, subsection 2 and 351 of BNS stand proved beyond reasonable doubt. The plea of false implication lacks substance and proof. Hence, it is humbly prayed that this honorable court may be pleased to convict the accused Manoj under section 79, 115, subsection 2 and 351 of BNS. Thank you. Argument on behalf of accused kindly permit me. As my prosecution learned counsel has placed the beautiful story about the incident, but it is totally fabricated and I deny this. The facts about the incident are as follows. That is, the complainant Simran lodged FIR on 14th November 2024 at 4 p.m. The incident occurred at 3:45 p.m. and FIR lodged within 15 minutes. So very prompt action is praiseworthy itself. I have no remark. But it is very promptly action was taken against Manoj, accused brother of
complainant Simran. Under section 296, 115 and 353 of BNS 2020. That is, Manoj, the brother of Simran, had lended rupees 10,000 as loan, but did not repay the same after demanding many times. Your Honor, this is the main cause of action which occurred in this incident. Manoj approached her to refund the money. This is the lended money. He was not demanding any forcefully, but he has lended rupees 10,000 to his sister, and he approached to refund. But she refused to pay. This is main cause of action, due to which Manoj asked loudly and explained his necessity. But Simran started quarreling and manhandling with Manoj. This was the condition. He was in need of money, who he has lended to his sister, but he refused many times, and again he refused to pay. So this hard talk started. That is, the FIR for abusing in filthy words for her mother and sisters, threatening to cause her death and assault upon her by causing injury by razor blade, is planned story to avoid from refunding the loan amount. That is, the prosecution has based this story on circumstantial basis, not on oral or documental evidence. It is necessary under the circumstantial evidence for proving the guilt of accused beyond the reasonable doubt. That is, each chain of incident has to be linked to each other, in the absence of which accused cannot be convicted. If we observe this case, the chain is not completed due to following reasons. First, the evidence of PW1, that is complaint. Simran stated in her evidence before court that she was sitting outside her house along with her mother and neighbor Kiran. This was stated before court by Simran, that she was sitting outside her house along with her mother and neighbor Kiran. In the meantime, Manoj came and asked to refund his money, and after refusing to pay, he uttered some filthy words and caused razor blade injury on her right hand. Her mother Shanti Bai and neighbor Kiran intervened, but in cross-examination, Your Honor, she admitted that no injury on her left hand. Contrary to this statement, her mother Shanti Bai deposed in her witness in court that she was inside her home. So this is totally contrary to the statement of Simran, that her mother was outside along with her. His mother deposed in her witness in court that she was inside her home on hearing
hue and cry of her daughter. She came out and saw blood on her daughter's hand, and Manoj was escaping from the spot. The second eyewitness, Kiran, neighbor of Simran, did not support the prosecution case and turned hostile. So both the eyewitness have not supported the incident. Third witness is a doctor, deposed that during medical examination he found an incisive wound of simple nature over right hand of Simran. As my colleague stated, the size of injury is 3 inch by 5 inch. It is not true. It is 0.3 inch by 0.5 inch. Over right hand of Simran, and multiple superficial incisive wound over left forearm caused by sharp edge. While in his statement by Simran stated that there is no injury in left hand, but as per the medical, it was found that there is multiple superficial incisive wound over left forearm also, and but it was caused by sharp edge object. This is also contrary to the statement that no injury was caused on her left hand. It has not proved in medical examination that human blood on razor blade is matching with the blood group of Simran. My learned counsel has stated that on razor blade there was human blood, but it is not matching with the Simran's group, blood group on razor blade, and neither e-evidence or police roznamcha exhibited in support of seizure from Manoj of razor blade, whether at soap as he used it or any other sport. Razor blade was a tool of Manoj which he used in his business. Thus, the entire chain of circumstances neither been collected by the prosecution nor has been proved. This is the case that prosecution has failed to prove a single chain of circumstances. So, on behalf of accused, it is urged that there is no eyewitness of incident. The testimony of the complainant is doubtful on account to evade payment of loan. Money rupees 10,000 her sister has falsely implicated him. Therefore, the accused are required to be acquitted from the offence. The leading relevant cases are High Court Jabalpur WP number 6764 of 2017, Pankaj Singh @ Sonu Singh versus State of MP and others, passed on 20th August 2017. In this case, acquittal of petitioner decided by the court. Second is Amit Rathi versus State of Haryana, decided on 4th August 2023, acquittal of the High Court Madras, decided 31st July 2023. B. Dinesh Kumar, petitioner versus DIG of police and others. This is a very interesting case, sir. In this case,
more than 4 or 5 petitioners filed his petition in a High Court that they are disqualified by the recruitment authority in Madras on the ground that some cases under section IPC 294, 323 and 506 was lodged, and after investigation all the cases were found false, and on the ground of benefit of doubt they were admitted. But the recruitment authority of Madras disqualified them that the acquittal was not on marital ground. It is on the ground of benefit of doubt. So this case approached in High Court, and High Court allowed and instructed to the authority to take him in service. So this is very important. On these grounds, kindly accused are required to be acquitted from the offence. Thank you. Accused merely denied the charges and alleged false implication due to loan. Sir, but he did not bring any witness or documentary proof to support this claim. Sir, Simran voluntarily admitted the loan in cross-examination, showing her honesty, not motive for false implication. Sir, I also had mentioned one case law regarding it in page number 8. I request you please open page number 8. In the case of State of Maharashtra versus Suresh 2000, when prosecution proves the guilt and the defense offers a false explanation, it becomes an additional link in the chain of circumstances. Sir, the second point, which is no independent witness, which is mentioned by my colleague. Sir, it is a settled principle of law that conviction can be based on the sole testimony of the victim if found reliable and trustworthy. Sir, the complainant testimony is consistent, corroborated by medical evidence and supported by seizure of blood-stained razor. Sir, Shantabai, who is the mother of the complainant, through a direct eyewitness to the assault, corroborated the immediate aftermath, including presence of blood and Manoj fleeing the spot, which shows that she is an eyewitness. Sir, and one more witness, which is Kiran, who becomes a hostile. Sir, turning hostile of Kiran is not fatal to the case. Court recognized that hostile witness often retract due to pressure or fear. Sir, and credible portion of their statement can still be used. So one more point, sir, mentioned, which is medical inconsistency. Sir, victim of sudden assault may not remember or specify each injury location precisely under trauma. Sir, Simran, go to the police station and file an FIR within 15 minutes after the incident. And we are human beings. We don't remember each and every injury when we reach police station within 15 minutes. We need some time to remember the incident. So it is very common that people forget the injuries. Sir, the doctor found fresh incised wounds caused by sharp object with the relevant time frame, which directly corroborates the occurrence of assault. Sir, doctor also stated in cross-examination that injuries could not have been self-inflicted, nullifying defense doubt. So one more point which is mentioned by my colleague, that there is no DNA or no blood group. Sir, I had mentioned in page number 10, presence of human blood on a razor blade recovered from the accused shortly after the incident is clinching circumstantial evidence. Sir, in cases of simple heart
under section 115 subsection 2 BNS, lack of DNA evidence is not fatal, especially when supported by direct testimony, medical findings and seizure of report. So one more point which I want to highlight here is in page number 11, some minor injuries are still punishable under section 115 subsection 2 BNS and the law does not require grievous hurt to establish assault. So the doctor explicitly ruled out the possibility of self-inflicted wounds, stating that injuries were consistent with external assault using a sharp object. So complainant had no previous criminal history of false complaint, making the allegation of fabrication highly improbable. Sir, one more point which is mentioned by my colleague, that the chain of circumstantial evidence is not completed. Sir, I want to highlight that, sir, the first main point, which is motive. So motive is there, 10,000 rupees are pending. So that's why the sister of the accused is not giving, or there are some issues between them. If she is refused to giving 10,000 rupees, that doesn't mean the brother should have to harm her own sister. That's the first point, which is motive. And second one, attack. So attack is witnessed by the eyewitness of Shantabai. So she witnesses the attack, which is confirmed by the medical and which is confirmed by the doctor also. Sir, after that, seizure of blood stained razor blade. Sir, this forms a complete chain of assault. Thanks, sir. Your Honor, to conclude the defense, as my colleague stated, that the accused should prove about the payment of rupees 10,000. But in his statement, Simran already admitted that he has taken money from his brother. So that is no need to prove by the accused that he has lended rupees 10,000. And no independent witness or whatever two witnesses were shown in prosecution, both as denied are turned hostile. So there is no eyewitness of this incident. Whatever Simran has stated that her brother has injured her, it is not true. During the delivery of dialogue or some hot talk, Simran rushed to her brother, and during this she slipped or anything, but Manoj did not hurt her by any sharp object. It may possible that this injury may caused by any sharp object where he slipped, but Manoj did not, neither he has any intention to hurt his sister, but he was only in situation that he was demanding that to refund the money because he was in necessity, but she refused many times and again she refused. So this condition has occurred that when she rushed towards Manoj, so he escaped from the spot. So it doesn't show that she has assaulted to Simran. And in this
case, my colleague has said that blood spot या blood stains were found on razor blade of human blood. So this does not prove that this human blood was of Manoj. And second point, my colleague stated that report was lodged very hastily, very promptly, so some facts may be left. But during the medical examination and MLC report by the doctor, he has exhibited each and every injury and shown that there is very general injury. So it appears that it was falsely implicated to evade the payment of money by the Simran. So kindly it is requested to accused to be acquitted from the offence. So I don't want to clear similar point again and again. I just want to say that, sir, 10,000 rupees which is mentioned by my colleague, it shows the intention of the accused. He is not getting 10,000 rupees, that's why he attacked his own sister, which shows his intention. And the second point, sir, medical evidence incise bound of 0.3 into 0.5 inch of right hand, which is consistent with the Simran's version. Simran told the police that she got bound, and after the medical examination, the exact inch on the right hand was found out. And sir, the doctor also mentioned in his report that injuries were caused by sharp-edged weapon and not self-inflicted, ruling out the defense theory. Sir, recovery of razor blade, sir, I am agree with that there is no DNA, but there is a human blood. Sir, but it doesn't mean DNA do not rule out the whole story, because all the evidences are making a chain. Sir, intention, which is proved because 10,000 rupees due, that's why he attacked on her own sister. And after that, sir, several times mentioned that there are no eyewitnesses. Sir, there is 2 eyewitnesses, but one become a hostile, who is Kiran. But mother is still a eyewitness. Mother saw the accused fleeing from the spot. Sir, after that, medical evidence which proves that there is a wound, and after that the recovery of razor blade, which shows a complete change, which makes a complete change. That's it. I don't want to say. Sir, it is already mentioned in my statement that her mother stated before court that she was inside the home, and when she came out by hearing hue and cry outside the home, he saw Manoj was escaping from the spot. She did not saw assaulting or injuring to Simran, neither she has admitted that this incident was caused by Manoj. So this is totally implicated or fabricated story. So I strongly urge to be acquitted the Sir, the mother Shantabai, sir mentioned that Manoj, she saw that Manoj fleeing the spot, but she also saw one more thing, which is Simran bleeding. The Simran is bleeding and Manoj fleeing the spot, which also shows the chain, which also proves the chain. That's it, I don't want to say. But nobody has witnessed who has caused injury due to which blood was oozing from the Simran's right hand.
So on the basis blood was oozing, how can you say that this was caused by the Manoj? Because sir, there is no other person so So- by the Sir, So I highly why- object, there is no other person or he was escaping from the spot. It doesn't prove that Manoj has caused this injury. That's all. Sir, I don't want to say anything more, sir. I just want to complete the chain. The first intention is 10,000 rupees due. That's why the accused attacked the victim, and after attacking, mother saw the victim bleeding and the accused fleeing from the spot. And after that, there is a medical evidence which confirms there is a 0.3 and 0.5 inch of wound on the right hand of the victim. And after that, there is a blood-stained razor blade which is found from the accused. That's it. It completes whole chain of circumstances. Thanks. न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 छतरपुर मध्य प्रदेश के समक्ष मैं अभियोजन की ओर से मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। प्रकरण क्रमांक 1040/121। पूनम कौंडल पिता दिनेश कौंडल उम्र 14 वर्ष निवासी ओमकारा अभियोजन पक्ष की ओर से बनाम रामीबाई राम नरेश हमीद एवं रमेश प्रजापति इत्यादि अभियुक्त गण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान 9 अगस्त 2024 को दर्ज कराई गई। आरोप पत्र धारा एवं अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108, 96, 142, 143, 144 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, धारा 64 क्लॉज 2 सब क्लॉज 6, धारा 351 और SC/ST एक्ट की धारा 3112, पॉक्सो एक्ट की धारा 34 के तहत मामले को दर्ज कराया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9 अगस्त 2024 को 10 बजे रात्रि में अभियुक्ति द्वारा थाना कन्नौज में सूचना दी गई कि वह ग्राम डांगरखेड़ा में रहती है। उसके पिता ग्राम ओमकारा के रहने वाले हैं, जो गांव बांध में डूबने के कारण डांगरखेड़ा में रहने के लिए आए हैं। उसके पिता को मरे 10 साल हो गए। उसकी मां का राम नरेश के साथ अवैध संबंध है। करीब 1 माह पूर्व उसकी मम्मी रामीबाई और राम नरेश निवासी डांगरखेड़ा एकमत होकर उसे डांगरखेड़ा में गोल्डी मोहल्ला कन्नौज लेकर आए और शेरू भाई के मकान में किराए का कमरा लेकर रहने लगे तथा किराए के घर में कमरे में 4 दिन तक रहे। उसकी मम्मी के घर से बाहर जाते समय तब राम नरेश कमरे में बंद कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जान से मारने की धौंस देकर जबरन खोटा काम करता था, अर्थात उसके साथ रेप करता था तथा जब वह अपनी माँ को बताती थी इस बारे में तब उसकी माँ उसे डांटती थी और बोलती थी कि किसी को इस बारे में मत कहना। उसकी माता श्री राम नरेश को मना भी नहीं करती थी उसके साथ गलत काम करने से। उसकी मम्मी रामीबाई की सहमति से राम नरेश ने उसके साथ 4 दिन तक गलत काम किया। फिर उसकी मम्मी और राम नरेश उसे हरदा ले गए। हरदा बस स्टैंड पर राम नरेश ने फोन करके हमीद बस ड्राइवर को बुलाया। हमीद निवासी शिवपुर के सुपुर्द तथा उसे हमीद निवासी शिवपुर के सुपुर्द कर दिया। हमीद उसके घर शिवपुर में ले जाकर घर में उसको बंद रखा और हमीद ने भी जबरन उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ 8 दिन तक गलत काम किया। 8 दिन बाद जब उसकी मम्मी व राम नरेश शिवपुर आए और दुर्गा मंदिर में ले जाकर रमेश प्रजापति एक तीसरे व्यक्ति के साथ जो शिवपुर का निवासी है उसके गले में हार डलवा दिया और उसे रमेश के सुपुर्द कर दिया। रमेश प्रजापति ने भी उसे 20 दिन तक कमरे में बंद रखा और उसने भी उसके साथ जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया। उसे वे लोग कमरे में छिपाकर बंद रखते थे। इन लोगों ने उसे आदिवासी लड़की जानते हुए भी, यह लोग जानते थे कि वह एक आदिवासी लड़की है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से आती है, फिर भी उसके साथ गलत काम किया। 10 दिन पूर्व उसकी मम्मी व राम नरेश उसे शिवपुर से कन्नौज वापस ले आए। मौका पाकर वह अपनी बहन के पास ग्राम पावरी आ गई। उसकी बहन तथा जीजा को उसने घटना के बारे में बताया। तब उसके जीजा मौसाजी तथा समाज के मोहन पटेल तथा उनको अपने साथ लेकर रिपोर्ट करने के लिए गई।
जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 96, 108, 142, 143, 144 क्लॉज 1 और 2 एवं धारा 64 क्लॉज 2 सब क्लॉज 6 के तहत दर्ज कराया गया एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(12) व पॉक्सो एक्ट की धारा 3(4) के तहत मामले को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर अभियुक्त गणों पर 9 धाराओं के गंभीर अपराध लगाए गए तथा जो कुछ शेष हो वो लगाने की कृपा की जाए। श्रीमान जी, पूनम अर्थात पीड़िता मात्र 14 वर्ष की बालिका है जिसने ठीक से इस दुनिया के लोगों को समझना भी नहीं सीखा था कि उसके साथ इतना बड़ा दुष्कृत्य किया गया एवं जान से मारने जैसी धमकी देकर एक मासूम को डरा धमका कर उसका फायदा उठाया गया है। प्रायः देखने में यह आता है कि नाबालिग बच्चों के साथ घटित घटनाओं में अनुसंधान अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से अनुसंधान नहीं करते। इस कारण SC/ST एक्ट के तहत बने नियम 7 में विवेचना का अधिकार DSP स्तर को दिया गया है। हाल ही में शासन ने 7 अक्टूबर 2017 को गृह विभाग के एक आदेश जारी कर विवेचना का अधिकार TI निरीक्षक को दिया गया है, जिसका राजपत्र 13 अक्टूबर 2017 को प्रकाशन हो गया। इसका मुख्य कारण त्वरित अनुसंधान करना है। अनुसंधान अधिकारी आयु के निर्धारण हेतु किशोर न्याय अधिनियम के नियम 2017 के अनुसार जन्म का प्रमाण पत्र नहीं लेते। इस कारण पॉक्सो एक्ट में सजा की संभावना कम हो जाती है, जो कि एक सही नहीं है। इसी तरह अनुसंधान सिर्फ नोटिफाइड अधिकारी ही कर सकते हैं, किंतु प्रधान आरक्षक ASI तक अनुसंधान कर लेते हैं, जो SC/ST एक्ट का उल्लंघन है। इसी तरह मोबाइल कॉल डिटेल के साथ साक्ष्य विधान की धारा 63 का प्रमाण पत्र नहीं होता तथा इस कॉल डिटेल में अपराध में आरोपी की संलिप्तता कैसी है, ऐसी कोई स्पष्ट समरी नहीं होती है। इससे न्यायालय को समझाने में कठिनाई होती है। DNA लैंगिक अपराधों जैसे मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है, लेकिन इसके आधार पर सजा सुनाई जा सकती है, किंतु अधिकांश मामलों में DNA कराया ही नहीं जाता है, जिससे अपराधी बच जाते हैं। इस प्रकार अनुसंधान में हुई छोटी छोटी त्रुटियां केस की दिशा को ही बदल देती हैं। इस प्रकार गंभीर चिंतन और प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। अतः इसके अभाव में अनुसंधान ठीक से पूरा न होने पर एक अपराधी आसानी से बच निकलता है और पीड़ित को न्याय नहीं प्राप्त हो पाता। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा धारा 9 में विभिन्न अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो यह प्रकरण में पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी का दायित्व बना देते हैं। हमें अनुसंधान के दौरान उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य को विधिक रूप से प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जब्त सामग्री न्यायालय में आर्टिकल के रूप में प्रदर्शित करनी होगी। DNA, FSL रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल कॉल डिटेल तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ धारा 63 साक्ष्य विधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा जो दस्तावेज प्रदर्शित करना है उन्हें साक्ष्य विधान के प्रावधानों के अनुरूप करना चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय प्रदान किया जा सके। अभियोजन की ओर से सबसे बड़ी साक्ष्य स्वयं नाबालिग पीड़िता के द्वारा दी गई है, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और इस प्रकरण की आरोपिया पीड़िता की मां रामी बाई एवं अन्य सह आरोपी राम नरेश के साथ रहने लगी, जो कि पीड़िता के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता था, पीड़िता के साथ अपराध व गलत काम करता था। उसके पश्चात 2 और सह अभियुक्तों के द्वारा समय समय पर लैंगिक अपराध व शोषण किया गया। इस प्रकार 3 आरोपियों ने मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार कर गुरुत्व प्रवेशन किया। पीड़िता 14 वर्ष की है एवं SC/ST वर्ग की है। यह जानते बूझते हुए भी बलात्कार व मानव दुराव्यापार जैसी गंभीर एवं घिनौनी अपराध को अंजाम दिया गया और इस अपराध ऐसे गंभीर कृत्य की पुष्टि स्वयं पीड़िता अभियोजन साक्ष्य 1 के द्वारा तथा पीड़िता एवं उनके अन्य परिजन, उनके जीजा सहित 2 डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता और आरोपी का मेडिकल किया तथा अनुसंधान अधिकारी SDPO कन्नौज आदि के कथन कराए गए तथा आयु निर्धारण हेतु स्कूल में के प्रधान अध्यापक का कथन तथा जाति के लिए SDM के रीडर के कथन जाति प्रमाणित कराने हेतु कराए गए। जाति प्रमाण पत्र एवं MLC रिपोर्ट सबसे लास्ट में लगाई गई है। इसमें न्यायालय में प्रकरणों की पीड़िता ने अपने आप बीती बात स्पष्ट रूप से कही, साथ ही परिजनों ने भी घटना का समर्थन किया है।
और अन्य साक्ष्य पर विश्वास कर पीड़िता की सगी मां जो अपनी अवयस्क पुत्री का लैंगिक शोषण कराने में सहयोग कर रही थी उसका भी कथन दर्ज किया गया। मैं माननीय न्यायालय से अभियुक्त की ओर से केस को रिप्रेजेंट करने की अनुमति है। माननीय न्यायालय के समक्ष मामले का सारांश कुछ इस प्रकार है। मैं अपने अभियुक्त का पक्ष रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि अभियुक्त की ओर से संबंधित मामले का विस्तार पूर्वक वृत्तांत कुछ इस प्रकार है। आरोप पत्र में शिकायतकर्ता के द्वारा बीएनएस की धारा 137, 296, 142, 64, 351, 35, 143 तथा बीएनएस तथा SC/ST एक्ट की धारा 31 तथा पोस्को एक्ट की धारा 34 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले मैं माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पर बात करना चाहूंगा कि सबसे जो कि अभियोजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि सभी आरोपों में से जो व्यवहार की धारा 137(2) लगी हुई है उसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि बीएनएस की धारा 137(2) यह उल्लेख करती है कि जो कोई किसी शिशु को उसके किसी संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो वह व्यवहार करता है। लेकिन महोदय, इस पूरी चार्जशीट पर ऐसी कोई भी बात नहीं आई है जिससे स्पष्ट हो सके कि बच्ची का व्यवहार हुआ है, क्योंकि बिना संरक्षक के, बिना उसकी मम्मी की सहमति के मतलब उसको कहीं भी नहीं ले जाया गया। इसके अलावा जो अभियोजन के द्वारा जो धाराएं और लगाई गई हैं, जैसे पंथी हिंसा जो हुई है, तो माननीय न्यायालय पूरी चार्जशीट में पंथी हिंसा कहीं पर नहीं हुई है। इसके अलावा जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण की जो धारा लगाई गई है उसमें आत्महत्या भी कहीं नहीं हुई है, तो दुष्प्रेरण का उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा विचारणा में माननीय न्यायालय को बताना चाहूंगा कि अभियुक्त गणों को उक्त आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त गणों ने उपरोक्त आरोपों से इनकार किया है तथा विचारण किया है और स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें पुरानी रंजिश के चलते पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से कहना चाहूंगा कि यह पूरा का पूरा मामला मनगढ़ंत है तथा अभियुक्त गणों के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया है। इस संबंध में मैं जो अभियोजन की पक्ष की तरफ से जो डिटेल दी गई है उसके सामने मैं कुछ तर्क पेश करना चाहूंगा। उसके जवाब में अभियोजन के कथनानुसार रामनरेश अभियुक्त्री के साथ खोटा काम करता था। तो मैं माननीय न्यायालय को बताना चाहता हूँ कि जब रामनरेश अभियुक्त्री के साथ खोटा काम शेरू भाई के मकान में करता था तो उसमें अभियुक्त्री चिल्ला सकती थी कि उसके साथ गलत काम हुआ है, या इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को तथा किसी से पूछकर पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन वह कहीं नहीं गई और ना ही उसने किसी को इस घटना के बारे में कोई चीज बताई है। इसके अलावा इसमें जिक्र किया गया है कि उसके साथ खोटा काम करता था, लेकिन इसमें पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा खोटा काम करता था जिससे अब प्रत्यक्ष पता चल सके कि अभियुक्त्री के साथ क्या हुआ था, क्योंकि खोटा काम करना किसी भी संहिता में बलात्कार के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद जो अभियुक्त्री ने बताया कि उसकी मम्मी भी नहीं रोकती थी कि उसके साथ गलत काम हो रहा है, तो मैं इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अभियुक्त्री इतनी समझदार नहीं है तो वह ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी बोल देती है, क्योंकि किसी भी बच्चे के माँ बाप ये कभी नहीं चाह सकते हैं कि उसके बच्चे के साथ गलत हो और वह कुछ ना बोले। इसके बाद जो अभियोजन के द्वारा यह भी बताया गया है कि हामिद तथा रमेश प्रजापति ने उसके साथ गलत काम किया, तो उसके बारे में भी कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई प्रमाण है। इसके बाद जो रामनरेश तथा पीड़िता की मां ने रमेश प्रजापति से जो गले में हार डलवाया था अभियोजन के कथनानुसार, तो उसका भी कोई जब्ती पत्रक या वह हार कहाँ है वह कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है। अभियोजन के कथनानुसार रामनरेश ने जो बस ड्राइवर हामिद को फोन करके बुलाया था तो उसका भी ना कोई CTR है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस हमेशा ऐसी चीजें जल्द ही निकाल देती है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए पुलिस कॉल डिटेल निकालने में असमर्थ रही है। क्योंकि अगर कॉल डिटेल निकाल दिया जाता है तो ये पीड़िता के संबंध में जितने भी ये चीजें हुई हैं, जितने भी अभियोजन ने कथन किए हैं, पूरा का पूरा ये स्पष्ट हो जाता कि हामिद की रामनरेश से क्या बात हुई। इसके बाद ये पूरे के पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि इसमें आरोपी के DNA की पीड़िता के साथ मैच नहीं कराए गए हैं, जो कि कराना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि पहले ही करा लिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं कराई गई। इसके अलावा इसमें अनुसंधान अधिकारी के द्वारा भी किसी प्रकार की साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई है। इसके साथ इसमें कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य या डिजिटल साक्ष्य विधिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए।
इसके अलावा DNA FSL रिपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोबाइल की कॉल डिटेल भी पेश नहीं की गई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो कि पीड़िता के बयान जो वीडियोग्राफी के द्वारा लिए जाते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, वो भी नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर पीड़िता के साथ घटनाएं घटी वहाँ की भी कोई रिपोर्ट तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना के स्थान के किसी भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष साक्षियों के किसी भी व्यक्ति की कथन लेखबद्ध नहीं किए गए। माननीय न्यायालय इस प्रकरण में कोई भी घटना कारित होना स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होती है, जिससे यह इशारा पता चल सके कि पीड़िता के साथ उपरोक्त अपराधियों ने अपराध कारित किया है। इसके अलावा डॉक्टर ने भी उसकी वेजाइनल स्लाइड की रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसके साथ बलात्संग हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस गंभीर कृत्य की पुष्टि स्वयं पीड़िता ने की है। इसके अलावा कोई भी दूसरा साक्षी नहीं है जो सिर्फ इतना बता सके कि पीड़िता के साथ गलत काम हुआ है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति कभी भी कुछ भी तथा किसी भी आरोप लगा देते हैं किसी पर भी, जिससे FIR इस संबंध में दर्ज हो जाती है। परंतु माननीय न्यायालय केवल पीड़िता के FIR दर्ज कराने के आधार पर ही, पीड़िता के कथन पर ही इस आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि घटना अभियुक्त गणों ने ही कारित की है। इसके अतिरिक्त साक्षियों की स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य चाहिए होती है, क्योंकि अभियुक्त गणों के खिलाफ किसी ने भी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य तक पेश नहीं किए हैं। जब किसी पीड़ित के पास प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होते हैं तो माननीय न्यायालय वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है, किंतु इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण संदेह के घेरे में भी बिल्कुल नहीं आते हैं तथा उनका पूरी तरह से इस पीड़िता के साथ घटना कारित करने में कोई भी रोल नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि वही आरोपी है तथा उन्हीं ने घटना कारित की है। उपरोक्त प्रकरण में मैं माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ केस लॉ प्रेजेंट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। इसमें जो फर्स्ट है चांद बाबू और विशाल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2023। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ने इस मामले में मतलब निर्धारित किया है कि अभियुक्त के खिलाफ किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं होने के कारण उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो लक्ष्मीकांत शुक्ला पुत्र स्वर्गीय इंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि सिर्फ रिपोर्टों के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिपोर्टें बनावटी भी हो सकती हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोंटी 2000 साबित न हो तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ FIR के आधार पर दोषित नहीं किया जा सकता। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि घटना की परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होने पाए जाने के कारण विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय दिए जाकर अभियुक्त गणों को बरी करने की कृपा की जाए। श्रीमान जी, पीड़िता के द्वारा पहले ही यह स्वीकार किया जा चुका है कि उसके पिता जो है उसकी 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और उनकी जो माताश्री है उनका राम नरेश के साथ अवैध संबंध है और उसके साथ ही वो 4 दिन तक सीरू भाई के कमरे में किराए के मकान में रही है, जिससे यह स्पष्ट तो होता है कि उन दोनों का अवैध संबंध है और वो साथ में रहते हैं। और उसके साथ ही मेरे साथी अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता चिल्ला सकती थी। श्रीमान जी, उसको डराया गया था, धमकाया गया था। वो एक 14 वर्ष की एक मासूम बच्ची है जो डर के मारे नहीं उसने किसी को बताया। उसने अपनी माँ से यह बात साझा की थी, लेकिन उसने भी उसकी बात को अनदेखा कर दिया। इसके संबंध में मैं एक केस लॉ रखने की अनुमति चाहूंगी। रमेश चंद्र अरोरा AIR 1960 154 के मामले में अभियुक्त ने एक लड़की का अश्लील चित्र लिया और उसके आधार पर वह उसके पिता व लड़की को डरा धमका रहा था, जिस कारणवश न्यायालय ने उसे आपराधिक अभित्रास के क्रम में दोष सिद्धि प्रदान की। इसी प्रकार श्रीमान जी जो राम नरेश थे वो भी पीड़िता को डरा धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिस कारणवश उसने किसी को नहीं बताया। जैसा कि अभियोजन के द्वारा बताया गया है कि राम नरेश और उसके मतलब पीड़िता की मम्मी के अवैध संबंध थे, तो इस बारे में भी इस प्रकरण में कोई भी मतलब साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई है कि उनके मतलब क्या संबंध थे और वो कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें थी। इसके अलावा जैसे मतलब बताया गया अभियोजन के द्वारा कि उसको बच्ची को डराया धमकाया गया था, तो ना तो डराने के बारे में ना धमकाने के बारे में मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतलब कहीं पर भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि उसे धमकी दी गई थी, जान से मारने की या कुछ भी किया गया था। इसके अलावा ना भी कोई विटनेस है इस मामले में और ना ही माननीय न्यायालय कोई इसमें कोई स्पष्ट साक्ष्य है। वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि उसे डराया धमकाया गया था जब वो
अपने बहन के पास गई तो उसने अपने मन की बात रखी, उसको बताई, तब उसकी बहन ने जाकर FIR दर्ज करवाई है। माननीय न्यायालय को बताना चाहूंगा कि स्वयं के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि यदि कोई पीड़ित कुछ कह रहा है तो उसे ही सत्य मान लिया जाए। उसकी सत्यता को साबित करने के लिए अन्य तथ्यों की जरूरत पड़ती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। डॉक्टर साहब, श्रीमान जी, इतनी बड़ी कहानी एक 14 वर्ष की मासूम बालिका स्वयं तो नहीं रख सकती है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, इसी कारण बस उसने बताया है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी न्यायालय के समक्ष। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 14 वर्षीय मासूम के साथ अधेड़ व्यक्तियों एवं उसकी मां के द्वारा जो अपराध किया गया है उसको देखते हुए और गंभीर व संज्ञेय अपराधों को देखते हुए श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तों को कठोर से कठोर दंड एवं जुर्माने से दंडित करने की कृपा की जाए। इसके अलावा मैं माननीय न्यायालय को बताना चाहूंगा कि जो एक्सपर्टी की राय है, जैसे कि डॉक्टर वगैरह मतलब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार विशेषज्ञ केवल अपनी राय दे सकता है, जिसकी बारे में कोई किसी तथ्य के बारे में कोई कथन नहीं करते, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। कई बार दोनों पक्षकारों के एक्सपर्ट एक दूसरे के उल्टी राय देते हैं, क्योंकि ना तो कोई इसमें मतलब कोई पक्ष दूसरे में हितमत होता है। इसके अलावा इसमें जो प्रिवी काउंसिल ने भी एक बार इसमें बताया था कि विशेषज्ञ से अधिक असंतोषजनक साक्ष्य किसी का भी नहीं हो सकता है। इसके ये सर प्रिवी काउंसिल ने कहा था, इसमें सर केस का मतलब वो नहीं है। इसके अलावा केस मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें एक केस सर ये मतलब प्रिवी काउंसिल जो मतलब काउंसिल होती है उनके द्वारा ये कहा है। केस सर इसमें मतलब मेंशन नहीं है सर, मैं केस बता दूँ आगे जो नहीं सर, केस इसमें लिखा नहीं था तो मैंने ऐसे ही निकाला था। नहीं वो CH20 मतलब इस अनुसार आगे केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। केस नंबर कृष्णचंद्र देव वर्सेस बाबू गणेश प्रसाद AIR 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेषज्ञों की राय किसी बात का निर्णायक नहीं हो सकती है। जैसे कि अभियोजन के द्वारा जो डॉक्टरी की रिपोर्ट पेश कर गई उसी के संबंध में मैं केस प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो केस लॉ है पंत जी बलराम वेंकट गणेश वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2009 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने DNA टेस्ट को भी ग्राह्य करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह अतिरिक्त साक्ष्य की तरह विचार करने योग्य। इसलिए माननीय न्यायालय से कहना चाहूंगा कि निर्णय सुनाने से पूर्व ये सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्यक्ष साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कि कोई है भी या नहीं, इस आधार पर सूक्ष्म परीक्षण करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय दिया जाकर मेरे अभियुक्त गणों को दोष मुक्त करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं 143 सेक्शन 143 के संबंध में केस लॉ प्रस्तुत करना चाहूँ। मिर्जा सिकंदर वक्त 1871 NWC 146 के मामले में यह कहा गया कि यदि किसी हिंदू लड़की को ब्याह करके किसी मुसलमान को बेच दिया जाता है या किसी अन्य को बेचता है और उसके साथ शोषण करता है या करवाता है, बदले में उसे खाना या कपड़ा देता है किंतु कहीं आने जाने नहीं देता, यह अभी निर्धारित किया गया कि वह इस अपराध का दोषी है। माननीय न्यायालय को बताना चाहूंगा कि बेचने वाली कोई भी बात इस प्रकरण में आई ही नहीं है। श्रीमान जी, लेकिन उसे दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द किया गया था और उसके साथ पहले हमीद ने 8 दिन तक गलत काम किया है और गलत काम मेरे साथी अधिवक्ता के द्वारा कहा गया था कि छोटा काम कोई और काम भी हो सकता है, लेकिन श्रीमान जी जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जो कि बारी बारी से किया गया है और समय समय पर किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से सर मैंने पीछे भी लगाई है। एंड जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी जाति प्रमाण पत्र लगाया कि वह कौंदर आदिवासी जाति से आती है। माननीय न्यायालय में गैंग रेप के बारे में भी बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भी गैंग रेप इस प्रकरण में हुआ ही नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियां अलग अलग थी कि पहले मतलब जैसे अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है कि पहले रमेश, फिर इसके बाद मतलब जो भी अभियुक्त गण जितने भी हैं, तो उसमें मतलब अलग अलग परिस्थितियों में ये कृत्य किया गया है। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि ये मतलब गैंग रेप हुआ है। माननीय न्यायालय के समक्ष मैं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश वर्ग 2 शाजापुर मध्य प्रदेश, प्रकरण क्रमांक 1054/2024, दिनांक 18/11/2024, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र शाजापुर मध्य प्रदेश बनाम दिनेश
पिता रतनलाल, उम्र 25 वर्ष, ग्राम तुहेड़िया, बड़ी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की भूमिका। यह मामला चोरी एवं हत्या से संबंधित है। यह मामला जिला शाजापुर, ग्राम तुहेड़िया का है, जहां लोभ के कारण ममता की हत्या कर दी गई। मुख्य घटना: विनोद ग्राम तुहेड़िया, जिला शाजापुर में रहता है और ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है। रेशमबाई विनोद की माताजी हैं एवं श्रीमती बबीताबाई की सास हैं। दिनेश पिता रतनलाल, ग्राम तुहेड़िया, बड़ली, जिला शाजापुर में रहता है। रेशमबाई उसकी बड़ी मां है। दिनांक 18/11/2024 को जिला चिकित्सालय शाजापुर के डॉक्टर विकास पंडित की तहरीर थाना कोतवाली शाजापुर में सुबह को 9:28 बजे इस आशय की प्राप्ति हुई कि दिनांक 18/11/2024 को सुबह 7:58 बजे मृतका रेशमबाई पति उमराव सिंह निवासी ग्राम तुहेड़िया को उसका भतीजा रामचंद्र पिता रतनलाल लाया, जिसकी मृत्यु सिर में लगी चोट होने से संभावित है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली शाजापुर में मर्ग क्रमांक 77/2024 दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान सफीना फॉर्म जारी कर साक्षीगण को तलब करते हुए मृतक की लाश का पंचनामा बनाया गया तथा शव परीक्षण हेतु आवेदन देकर शव परीक्षण कराया गया और लाश उसके परिजनों को सुपुर्दगी में दी गई। दिनांक 18/11/2024 को लाश के अंतिम संस्कार के बाद शाम 4 बजे फरियादी विनोद ने थाना कोतवाली शाजापुर में इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम तुहेड़िया में रहता है। मंसूर भाई निवासी सुनेरा के ईंट भट्टे पर काम करता है। आज सुबह 4:45 बजे घर से चाय पीकर वह भट्टे पर आ गया था। तब करीब 6:30 बजे उसके काका रतनलाल के लड़के राधेश्याम ने मोबाइल से उसे बताया कि उसकी मां बोल नहीं रही है तथा उठ भी नहीं रही है। इस पर वह घर आया तो देखा कि उसकी मां रेशमबाई खाट पर मरी हालत में पड़ी है। बाईं आंख के पास चोट थी, बाएं कान से खून निकला था, सिर के पीछे भी चोट लगी थी, वह खून निकल रहा था। पैर से चांदी के आंवले वजन 300 ग्राम, करीब कीमत 10,000 रुपये नहीं थी, जो रात्रि में किसी अज्ञात बदमाश ने अटके हुए दरवाजे खोलकर चांदी के आंवले चोरी करने के लिए उसकी मां रेशमबाई को सिर में किसी अज्ञात हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर आंवले चोरी कर लिए। मामला कोतवाली में दर्ज किया गया। फरियादी विनोद ने उक्त सूचना देहाती नदी से दर्ज कर उसके आधार पर थाना कोतवाली शाजापुर में अपराध धारा 331 BNS 2023 के अधीन पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया। घटना स्थल से कुछ चीजें बरामद की गई, जो कि इस तरह है: खून आलूदा गोदड़ी, प्लास्टिक खाद की पल्ली, साल जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 27/11/2024 को अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। दिनेश को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम दिया गया और उक्त मेमोरेंडम के आधार पर उससे 2 चांदी के पांव पट्टी, 1 गले की चांदी चैन एवं नकदी 5,000 रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया। दिनांक 27/11/2024 को ही अभियुक्त दिनेश का मेमोरेंडम कथन लेते हुए दिनांक 28/11/2024 को एक पत्थर एवं जींस जब्त कर जब्ती पत्र बनाए गए। अन्वेषण के दौरान दिनांक 8/12/2024 को फरियादी विनोद व साक्षी बबीता ने शिनाख्ती कार्रवाई करवाई गई। पटवारी से घटना स्थल का नजरी नक्शा बनवाया गया। जब्त शुदा संपत्ति को क्षेत्रीय न्यायालय के विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर जांच हेतु भेजा गया। संपूर्ण अन्वेषण के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शाजापुर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां से उपार्पित होकर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियोजन की तरफ से साक्षीगण। अभियोजन की ओर से विनोद, श्रीमती बबीताबाई, जगदीश देवनारायण, महेश, राजेश कुमार सिंह तहसीलदार, केशव प्रसाद उमट पटवारी, पवन शर्मा प्रधान आरक्षक, डॉक्टर N.K. गुप्ता, राकेश कुमार पांडे उप निरीक्षक, भीम सिंह पटेल उप निरीक्षक, राम सिंह कछावा उप निरीक्षक, धन सिंह पवार सहायक उप निरीक्षक तथा
डॉक्टर प्रकाश पंडित इस तरह कुल 14 साक्षीगणों को परीक्षित कराया। अभियोजन साक्षी विनोद जो मृतका रेशम बाई का पुत्र है, ने अपनी न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया कि वह दिनांक 18/11/2024 को प्रातः 4:30-5 बजे ईंट भट्टे पर काम करने चला गया। प्रातः 6:30 बजे उसके काका के लड़के राधेश्याम ने मोबाइल से फोन कर उसे बताया कि उसकी मां बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर वह अपने घर आया और देखा कि मां को उठाकर देखने पर उसके हाथों में भी खून लग गया। उसने मां की रजाई हटाकर देखी तो उसकी मां के पैरों से चांदी की आवले, चांदी की चैन, चांदी की पट्टी जो वह पहनती थी नहीं थी, और उसकी मां के पेटीकोट में रखे 4-5 हजार रुपए भी नहीं थे। वह अपनी मां को ट्रैक्टर पर बैठाकर अस्पताल लाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर पुलिस ने सफीना खान बनाकर उसकी मां की लाश का नक्शा पंचनामा बनाया था और पुलिस ने उसकी मां का शव परीक्षण कराने के बाद शव उसकी सुपुर्दगी में रसीद द्वारा दिया था। पुलिस ने देहाती नलीसी लिखी थी और जिस स्थान में उसकी मां की मृत्यु हुई थी वहां पर नक्शा मौका बनाया था और मां के पलंग पर बिछी हुई गोदड़ी, पल्ली तथा साल जो खून में हो गई थी को जब्त किया था। अभियोजन साक्षी बबीता बाई विनोद की पत्नी बबीता बाई, जिसकी मृतका रेशम बाई सास थी, ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया कि उसकी सास आंगन में जहां बकरा बकरी बंधते हैं उस कमरे में सोती थी और रात के समय बाथरूम करके दरवाजा अटका देती थी, क्योंकि वह प्रातः 4 बजे उठकर उस स्थान पर जाती थी जहां उसकी सास सोती थी। घटना वाले दिन भी वह दूध निकाल कर लाई थी और दूध चूल्हे पर चढ़ाकर चाय बनाकर उसने तथा उसके पति ने पी। फिर उसका पति भट्टे पर काम करने के लिए प्रातः 4:45 बजे चला गया। उसकी बड़ी पुत्री जो 4-5 साल की है, उसने आकर बताया कि दादी अभी तक नहीं उठ रही हैं। तब उसने जाकर सास को आवाज़ लगाई कि चाय पी लो। आवाज़ लगाने पर भी जब वह नहीं उठी तो उसने फिर सास की रजाई उठाई तो देखा कि उसकी सास के मुंह पर चोट लगी थी, मुंह पर सूजन थी। तब उसने अपने काका ससुर के लड़के से उसके पति को फोन लगाने को कहा था और थोड़ी देर बाद उसका पति वहां आ गया था और उसके पति ने जब अपनी मां को देखा तो उसके सिर से खून निकल रहा था और उसकी सास के चांदी की आवले, कंदौरा और पेटीकोट में रखे पैसे नहीं थे। उसकी सास का शव परीक्षण शाजापुर अस्पताल में हुआ था और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। अभियोजन साक्षी डॉक्टर प्रकाश पंडित ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 18/11/2024 को प्रातः जिला चिकित्सालय शाजापुर में पदस्थ था। तब प्रातः 7:58 बजे मृतका रेशम बाई पति उमराव सिंह निवासी ग्राम तुहेड़िया को चोरों द्वारा उसके सिर पर चोट पहुंचाने से संभवतः मृत्यु होने पर उसका भतीजा लाया था, जिस पर उसने थाना प्रभारी शाजापुर को तहरीर भेजी थी। अभियोजन साक्षी डॉक्टर M.K. गुप्ता चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय शाजापुर ने अपने कथन में बताया कि मृतका रेशम बाई पति उमराव सिंह निवासी ग्राम तुहेड़िया का शव महिला आरक्षक ममता सिंह द्वारा आवेदन पत्र सहित शव परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा शव परीक्षण करने पर निम्न स्थितियां पाई गई थी: बाहरी परीक्षण व आंतरिक परीक्षण। बाहरी परीक्षण में मृतका की आयु 55 वर्ष थी। उसने ब्राउन स्वेटर, पीला ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट पहना हुआ था। मृतका की आंखें बंद होकर पुतलियां फैली हुई थी। मृत्यु पश्चात की अकड़न पूरे शरीर पर थी। मृतका की पीठ पर स्टैंडिंग फिक्स थी। बाएं कान से एवं सिर से खून रिस रहा था। सिर के बाईं तरफ से खून निकल रहा था। पेट फूला था। कलाइयां में कांच की चूड़ियां थी तथा गले में कांच की माला थी। आंतरिक परीक्षण। मृतका का हृदय दोनों तरफ खून से भरा हुआ था। आंतरिक अंग कंजस्ट थे। पेट खाली था। आंतों में पचा हुआ भोजन एवं गैस थी। मृतिका के शरीर पर काफी गहरी चोट आई थी। इस साक्षी ने मृतिका रेशम बाई की मृत्यु सिर पर आई चोटों से उत्पन्न कोमा के कारण शव परीक्षण से 12 घंटे अंदर हुई थी और उसके द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट बनाई गई थी। प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि मृतिका को आई चोटें किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना
प्रतीत हो रही थी। अभियोजन साक्षी जगदीश के कथनानुसार वह गार्ड की नौकरी करता था और जिला चिकित्सालय शाजापुर में उसकी ड्यूटी दिनांक 17/11/2024 को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक की थी और ड्यूटी के बाद वह महामाया बस से अपने घर आने के लिए बैठा था और रात 8:30 बजे सुनेरा में उतरा था। उसी बस से उसके साथ उसके गांव का दिनेश बागरी आरोपी भी उतरा था और उसने दिनेश के घर चलने के लिए कहा था। दिनेश को घर चलने के लिए कहा था तो दिनेश ने बोला थोड़ी देर में आएगा और दिनेश शराब के ठेके की तरफ चला गया और घटना वाले दिन से आरोपी बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। आरोपी इधर उधर घूमता रहता है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा कि शराब का ठेका गांव सुनेरा में एवी रोड पर है। भीम सिंह पटेल उप निरीक्षक के अनुसार कथनानुसार 27/11/2024 को उसे थाना कोतवाली शाजापुर में अपराध क्रमांक 1054/2024 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई और उसने प्रातः 6 बजे अभियुक्त दिनेश पिता रतनलाल के मेमोरेंडम कथन वस्तु को बरामद कराने बाबत लिए थे। अभियुक्त ने बताया कि वह चलकर सारी चीजें बरामद करा देगा जिसका मेमोरेंडम कथन उसने बनाया था और फिर अभियुक्त दिनेश द्वारा प्रातः 6:15 बजे अपनी टापरी में से साक्षियों के समक्ष निकालकर पेश करने पर 2 चांदी के आंवले पुराने जिस पर धारीदार डिजाइन है जो पहनने से जगह जगह दबे हुए हैं। वजन लगभग 300 ग्राम है। कीमत लगभग 10,000 रुपए जो 2 रुपए है। 2 चांदी की पांव पट्टी इस्तेमाली पहनने से जिनके नकूचे टूटे होकर धागे से बंधे हैं जिसके नीचे का नकूचा टूटा हुआ है था। कीमत 500 रुपए तथा 5,000 रुपए उसने जब्ती पंचनामे अनुसार जब्त किए। थाने लाकर पत्थर बरामद कराने बाबत पूछताछ की थी और मेमोरेंडम बनाया था। अभियुक्त ने पत्थर बरामद कराने बाबत कथन दिए थे। उसके द्वारा अभियुक्त द्वारा बताए जाने पर मेमोरेंडम कथन तैयार किया गया और दूसरे दिन अभियुक्त द्वारा घटना स्थल से 4-5 किलो का पत्थर प्रस्तुत किए जाने पर जब्ती पंचनामा द्वारा जब्त किया गया। अभियोजन साक्षी महेश मीणा ने अपने कथन में बताया है कि वह सुबह 6 बजे ग्राम धामनिया में हाजिर अदालत अभियुक्त दिनेश जिसे वह पहचानता है ने पुलिस को उसके सामने बताया था कि उसने अपनी बड़ी मां को पत्थर से मार दिया तथा संपत्ति चोरी की है जिसका मेमोरेंडम पुलिस ने तैयार किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर वह सारी संपत्ति उसके पास से जब्त की। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अभियुक्त को उसके सामने ही रोड पर गिरफ्तार किया था और यह भी कहा था कि अभियुक्त के सामने पुलिस को बताया था और उक्त सामान की जब्ती करवाई थी तथा उसके सामने ही 7-8 दिन पहले की घटना होना भी बताया। देवनारायण ने भी भीम सिंह पटेल के कथन का समर्थन करते हुए कहा है कि उसके सामने अभियुक्त दिनेश ने पुलिस को पत्थर से उसकी मां की हत्या करना बताया था तथा पत्थर बकरा बकरी बांधने वाली जगह रखा होकर बरामद कराना बताया था। धन सिंह पवार सहायक उप निरीक्षक थाना कोतवाली शाजापुर का कहना है कि दिनांक 18/11/2024 साक्ष्यों से प्रमाणित फरियादी व चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 18/11/2024 को मृतका रेशमबाई की मृत्यु उसके सिर पर चोट के परिणाम स्वरूप हो गई थी। साक्षी जगदीश के कथन से यह प्रमाणित होता है कि घटना वाली रात अभियुक्त ग्राम तुहेड़िया में था। अभियुक्त के अधिपत्य में उक्त जेवरात एवं रुपए किस प्रकार आए इसका भी अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिससे अभियुक्त के विरुद्ध मृतका रेशमबाई की हत्या कर उसके जेवरात व रुपए लूटने का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय से मेरी प्रार्थना है कि अभियुक्त ने जो चोरी तथा हत्या जैसा अपराध किया है इसके लिए उसे BNS की धारा 103 एवं धारा 309 और धारा 311 के तहत दोष सिद्ध कर कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें। माननीय न्यायालय में अभियुक्त पक्ष की ओर से अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। संबंधित मामले में निम्नलिखित कंडिका बुधवार के रूप में लिखा गया है।
माननीय न्यायालय, जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त दिनेश पर आरोप विचित किए गए हैं, जब उसे पढ़कर सुनाया गया तो उसने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि वह उस समय घटनास्थल पर था ही नहीं। अभियुक्त के द्वारा यह तर्क दिया गया कि साक्षीगण उससे पारिवारिक रंजिश रखते हैं क्योंकि मृतिका रेशमबाई उसकी बड़ी माँ थी और साक्षी विनोद मृतिका रेशमबाई का पुत्र एवं साक्षी बबीता बाई मृतिका की बहू है तथा यह सभी मिलकर उसको फंसाना चाहते हैं। यह सत्य है कि मृतिका रेशमबाई की हत्या तो हुई है, लेकिन हत्या अभियुक्त दिनेश द्वारा की गई है। इस बात का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। हत्या रात्रि के समय घर के अंदर की गई थी। घर पर मृतिका का पति, बेटा, बहू एवं नाती मौजूद थे, लेकिन किसी को भी घटना की भनक तक नहीं हुई। इसलिए यह कहानी सत्यता से परे बनावट पर आधारित है। अभियुक्त दिनेश को घटना की तारीख को ना तो किसी पड़ोसी के द्वारा, ना गांव वालों के द्वारा और ना ही घर वालों के द्वारा मृतिका के घर के आसपास देखा गया। माननीय न्यायालय, मृतिका रेशमबाई के पुत्र विनोद ने बताया है कि वह ग्राम तोहेड़िया निवासी है एवं घटना के दिन मंसूर भाई निवासी सुनेरा के ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है और वह 4:30 बजे के लगभग चाय पीकर भट्टे पर कार्य करने के लिए चला गया था। माननीय न्यायालय, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मजदूरी के लिए 9 बजे घर से निकलते हैं। 9:30 बजे में उनका कार्य प्रारंभ होता है, तो फिर वह सुबह वहां क्यों गए थे? तथा माननीय न्यायालय, उक्त घटना नवंबर माह की है, जब सुबह इतना कोहरा पड़ता है कि लोग अपने सामने रखी हुई वस्तु को भी ढंग से नहीं देख पाते। तब विनोद जी इतनी सुबह इतनी ठंड में कार्य कर रहे थे, जो कि एक बनावटी कहानी प्रतीत होती है। मृतिका रेशमबाई की बहू का कथन, बबीता ने बताया है कि उनकी सास आंगन में जहां बकरा बकरी बंधती हैं उस कमरे में सोती थी तथा रात्रि के समय दरवाजा अटका देती थी क्योंकि वह उस स्थान पर बकरी का दूध निकालने जाती थी और उस दिन भी प्रातः वह दूध निकालने के लिए उक्त स्थान पर पहुंची थी और वह दूध निकाल कर लाई थी। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या वह स्थान घटना होने के पश्चात उतना ही व्यवस्थित था? क्या उन्हें वहां किसी सामान की इधर उधर होने या किसी हाथापाई होने जैसी किसी घटना का संदेह नहीं हुआ? कोई खतरनाक औजार वहां नहीं दिखा, कोई नुकीला पत्थर, कोई खून वगैरह वहां नहीं दिखे। अगर नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिस पर तेज हथियार पत्थर से वार किया गया था, लूट की गई थी और ना तो सामान इधर उधर हुआ और ना ही खून ना ही उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आई। यह कैसे हो सकता है कि घर में लूट हो जाए, हत्या हो जाए, उस स्थान पर आप भ्रमण भी कराएं और उन्हें उस स्थान के बारे में कुछ पता भी ना चले। तथा बबीता जी ने कहा है कि उसकी बेटी जो 4-5 साल की है वह दादी को उठाने के लिए गई थी, तो यह बात झूठी प्रतीत होती है क्योंकि ठंड के समय में ज्यादातर बच्चे अक्सर सोते रहते हैं। डॉक्टर का कथन या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। इस साक्षी के मत में मृतिका रेशमबाई की सिर पर आई चोटों से उत्पन्न कोमा के कारण सब परीक्षण से 12 घंटे पहले है, जो कि किसी सख्त या बोथरी वस्तु से होना प्रतीत होता है। लेकिन श्रीमान जी, जब पुलिस प्रशासन को घटना स्थल से ऐसी कोई भी मोतरी चीज, सख्त या धारदार वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो तारीख 18 को अन्वेषण के दौरान ऐसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कथन, माननीय न्यायालय, पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान यह बताया है कि लूट का सामान एवं पत्थर जिससे हत्या की गई है वह कहाँ रखा था अथवा सामान जब्त भी किया गया। लेकिन माननीय न्यायालय, यह अभियोजन पक्ष की साजिश है। अभियुक्त को फंसाने की कोशिश की गई है जिसमें पुलिस प्रशासन भी मिला है। सबसे पहली बात, घटना के 10 दिन बाद पुलिस अभियुक्त को पकड़ती है, फिर अपनी अभिरक्षा में रखकर जबरन उससे यह स्वीकार करवाती है कि वह सामान कहाँ रखा है एवं वह पत्थर कहाँ रखा है। पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए अभियुक्त ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और अभियुक्त उनकी उसी चाल में फंस गया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी स्वीकृति किसी अपराध की अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। धारा 23(2) के अनुसार कोई भी स्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक वह स्वीकृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। अतः इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा केवल प्रशासन की प्रताड़ना से बचने के लिए
बात को स्वीकारा गया है। ऐसी स्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की गई थी। माननीय न्यायालय, मैं कुछ केस लॉस प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। केस नंबर 1, पेज नंबर 7, रमेश चंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1970 SC 940। इस बार में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त होने के नाते पुलिस के प्रति की गई स्वीकृति भी सुसंगत नहीं होती और अभियुक्त होने के कारण पुलिस से की गई स्वीकृति अवैध मानी जाती है। केस नंबर 2, अग्नु नागेशिया बनाम बिहार राज्य, AIR 1966 SC 134। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में पुलिस के समक्ष किया गया जुर्म इकबाल साबित नहीं किया जाएगा। केस नंबर 3, तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, धारा 34 के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में उसके द्वारा किया गया इकबालिया कथन आग्रह है यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह आरोप के संदर्भ में और प्राधिकारी की ओर से प्रलोभन धमकी या बात के कारण हुआ है। केस नंबर 4, किशोर चंद्र बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 1990 SC। इस मामले में यह कहा गया कि अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति ग्राम के मुखिया के समक्ष उस समय की गई थी जब उसे पुलिस अधिकारी द्वारा पहचान कार्रवाई हेतु ले जाया जा रहा था। इस संस्वीकृति को आग्रह माना गया। केस नंबर 5, इंद्रदलाल बनाम हरियाणा राज्य। इस मामले में यह कहा गया कि अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष ग्राह्य नहीं होगी। केस नंबर 6, अंकुश मूर्ति सिंधे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पेज नंबर 9। इस मामले में अभियुक्त गढ़ों पर लूट सहित हत्या का आरोप था। अभियुक्त ने 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा उसके गहने व नकदी लूटकर घटना स्थल से भाग गए। अभियुक्त गढ़ को दोषमुक्त किया गया क्योंकि घटना को अभियुक्त गढ़ से जोड़ने वाले कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं थे, फॉरेंसिक साक्ष्य भी नहीं था, DNA अंगुली चिन्ह आदि घटना का समर्थन नहीं कर रहे हैं। घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी तथा बराबरी भी कुछ खास नहीं थी। इसके बाद मैं कथन बताना चाहती हूँ देव नारायण एवं भीमसेन का कथन। यह कि उनके सामने अभियुक्त दिनेश ने पुलिस के समक्ष अपनी बड़ी मां को पत्थर से मारने लूट की घटना को अंजाम देने के बारे में बताया गया तथा वह पत्थर भी बकरा बकरी गंधने की जगह रखा गया, किंतु सहायक उप निरीक्षक के द्वारा 18/11/2024 को जब्ती पत्र बनाते समय ऐसी किसी भी पत्थर को जब्त नहीं किया गया एवं घटना के 10 दिन बाद उन्हें वह पत्थर उसी स्थान पर मिलता है तथा उस पर भी खून लगा मिलता है जो कि षड्यंत्र पूर्वक रखा गया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो रक्त लगा होता पत्थर कैसे बरामद हो जाता इतने दिनों बाद। समस्त स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र साक्षियों ने अपने कथनों में अभियुक्त का नाम नहीं बताया और केवल हत्यार द्वारा सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या करने वाली बात कही गई। अब मैं कुछ सारांश पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय न्यायालय, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। मेरे पक्षकार को मात्र संदेह के आधार पर फंसाए जाने की कोशिश की गई है जो कि पारिवारिक रंजिश को मन में रखते हुए की गई है। सच्चाई एवं स्पष्टता का पता लगाने के लिए अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी द्वारा कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं दिया गया है और मात्र संदेह के आधार पर उस पर यह आरोप लगाया है। पूरे मामले को देखकर यह लगता है कि घटना के पूर्व एवं बाद की कहानी को अभियोजन के द्वारा साक्षियों की मिलीभगत से बनाया गया है, क्योंकि घटना किसी तारीख को होना, अभियुक्त को 10 दिन बाद गिरफ्तार किया जाना, पहले पत्थर का उपस्थित न होना, फिर उसी जगह पर पत्थर का मिलना 10 दिन बाद इत्यादि। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त बेकसूर है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में निर्दोष व्यक्ति को दंड देना न्यायालय के हित में उचित नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त को दोष मुक्ति प्रदान करके मामले को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
सन 2024। पूनम कौंदर, पिता दिनेश कौंदर, उम्र 14 वर्ष, निवासी ग्राम ओमकारा, अभियोजन पक्ष। बनाम रामीबाई, राम नरेश, हमीद एवं रमेश प्रजापति इत्यादि अभियुक्त गण। प्रथम सूचना रिपोर्ट 9 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई। आरोप पत्र, धारा एवं अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108, धारा 108, धारा 96, धारा 142, 143, 144 क्लॉज 1 और 2 और धारा 64 क्लॉज 2 सब क्लॉज 6 और धारा 351 SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(12) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3(4). अभियोजन की ओर से मामले को संक्षिप्त विवरण करने से पहले मैं कुछ तथ्यों को सामने रखने की अनुमति चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना रखने वाला भारत देश, जहां नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की परंपरा हमारे देश की धरोहर है, इसी प्रकार हमारे यहाँ नारी को देवी का सम्मान दिया जाता है और कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। परंतु समय की बदलती करवटों और कुछ वर्षों में घटित घटनाओं और कलयुगों के प्रभाव के कारण तथा लोगों की सोच की मनोवृत्ति, फिल्म, इंटरनेट, मोबाइल और अन्य जो सामग्री लोगों को मिल रही है, उससे यह धारणा बदल रही है। वह सुविधा के लिए बहुत जरूरी है, किंतु इससे अपराध की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। अपराध के तरीके आज बदल गए हैं। सर्वाधिक अपराध महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें स्वयं परिवार के लोग, माता पिता तक अपनी संतान अर्थात परिवार के साथ मिलकर ऑनर किलिंग में लग जाते हैं और इस तरह से अपराध बढ़ना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि घर की चार दीवारी के बीच अपराध सवार दब जाते हैं। बढ़ती महिला अत्याचार, बच्चों के देह व्यापार, बेचने की घटना और लैंगिक अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रभाव यह होगा कि विधायिका और न्यायपालिका के कानों में जब यह बात या अपराधों की गूंज जाती है तो प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कठोर कानूनों की रचना की जाती है। और इसी से संबंधित कुछ मामले का संक्षिप्त विवरण में रखना चाहूँगी। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9 अगस्त 2024 को 10 बजे रात्रि में अभियुक्ति द्वारा थाना कन्नौज में सूचना दी गई कि वह ग्राम डांगरखेड़ा में